السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسنسرڈ ود فیاض نائش سگڈ مان ہے جو میزبان فیاض نائش. ناظرین، ملک کے اندر جکا دہشت گردی جی صورتحال ہے ان حوالے سے جو پروگرام میں گفتگو کناسوں. وزیر اعظم صاحب جکا ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں ان سے گفتگو کئی ان کا پہلے ایپیکس کمیٹی اجلاس کوئٹہ میں تھو 26 اگست تے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو کچھ تھو جنہیں جی دہشت گردی کا واقعہ تھا یقینی طور تے ان کے سب کے افسوس ہے. ان سے گڈ جو خیبر پختونخوا والا ضلع ہے اتنے بھی دہشت گردی کی جکا لہر وہ تیزی آئی ہے. پاکستان ہیر جو طالبان کے پارا جو چیو ویو پاکستان ان کے ثبوت نہ آئن ٹی ٹی پی جی افغانستان کی سرزمین جکا پاکستان استعمال کرے پئی کہ بھئی ان حوالے سے پاکستان ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ کئی ہے. نگر صوبے جو شہری جو گرفتار تھا انہیں چوا ٹریننگ حاصل کیا وہ پاکستان کے اندر کاروائی کندو رہے تو. ناظرین، ان سجے منظرنامے تے گفتگو کناسوں چھکان ایپیکس کمیٹی جو اجلاس تھو ہے. ان کے علاوہ جو اسانے گھروں وزیر ہیں محسن نقوی صاحب ان جو بیان میں جو ہے کافی گفتگو تھی رہی ہے. جن بیان میں چیو تو بلوچستان جو مسئلو ایکڑے ایس ایچ او جی مار ہے. ہاں بلوچستان جو مسئلو ایڈو واقع سولو ہے کہ جو اساں 60 کے دہاکے کا وٹھی یہ معاملو حل تھی جائے اساں کے نظر کون تو 60 کے دہاکے میں انسرجنسی تھی ہے. پانچ وقت میں ذوالفقار بھٹو صاحب کے وقت میں بھی اساں کے وہ نظر آئے جکا چونڈل حکومت ہوئی وہ ختم کئی ہوئی طاولا مینگل صاحب جی. ان کا پو وری اساں کے جو 80 کے دہاکے کے اندر کیا انسرجنسی نظر آئی. 90 کے دہاکے میں اختر مینگل صاحب کی حکومت ختم تھی. اکبر بھٹی صاحب جو واقع پرویز مشرف کے ڈین میں تھو ان کا پو ہی مسلسل جو ہے بلوچستان کی جکا انسرجنسی ہے وہ ختم نہ تھی. پر ہن میرے اساں کے جو حکومتی سطح تے جو ٹون نظر آیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کلام کے بانو پاکستان کے تھا منن پاکستان کے آئین کے تھا باقی پاکستان کے جھنڈے کے انہن کے خلاف کاروائی تھی. ہاں ظاہر یہ جو لبولے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کے برعکس جو 2008 میں پیپلز پارٹی وفاقی حکومت ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب بلوچ جکا ہے قوم کا معافی گئی ہوئی ہم چیو تو بلوچستان کے زیادتی تھی ان کا وقت آغاز حقوق بلوچستان کے نالے سے پیکیج جو بھی اعلان کیو جتے کافی کم بھی تھے. ہم سے گروہ جکا ان وقت نیکسٹ بلوچستان جو سو بینو کیو ہو. پر ہانے دن یہ بحث نہ صرف کھلو ہے خاص طرح 26 اگست والی جگہ دہشت گردی تھی ان جن جی ہر مانو جکا ہے وہ مذمت کرے تو پيو بلوچ لڑاک ان کی جکا ہمدردی ہوئی 26 اگست والی ان کا وہ ہمدردی جو جن کارنرس میں ہمدردی وہ بھی ختم تھی نظر اچے پئی. ان واقعے جی جتے بی این پی مینگل جو پارا مذمت تھی اتنے ماہرن بلوچ بھی ان کی مذمت کئی انہوں چوتھی دہشت گردی جکا ہے وہ قیامت خواب میں وہ ہر حوالے سے نیب بنتا تھا. پر بہرحال ایکڑی گال جکا ہے وہ میرے جو ڈبیٹ ہے سے شروع تھا بلوچستان شروع پاکستان میں محسن نقوی صاحب جو بیان وزیر اعظم جو بیان خود بلوچستان کے اندر جو یہ معاملو ہے جو پرانی تاریخ ہے ان وقت وٹھی ہل تائیں یہ معاملہ جو کچھ تھو بلوچستان کے اندر مختلف وقتن تے مختلف حکمرانن جو وعدہ کیا ہیں جو ایگریمنٹس سے آئیں ان حوالے سے گفتگو نظر آئے ان تے کترو عمل درآمد ہوا جنہیں اساں دہشت گردن کے چون تھا تو بھائی وہ جو آئین قانون کی پاسداری کن تو خود پاکستان کے اندر 75-76 سالن کے اندر ریاستی ادارن کے پارا جو تھو ہے ان کے حوالے سے کافی سوال ہیں. تو اتنے قانون آئین کی عملداری کے حوالے سے اساں کے ادارن کے تو چھکا مسنگ پرسن والو معاملو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وٹھی پارلیمنٹ کا وٹھی ہر آئینی فورم تے اچھی چکو ہے. پر اج تائیں اساں وٹ ان ایکڑے سوال جو وہ بے جواب نہ ہے. ان معاملے تو گفتگو کناسوں جناب سید سامی صاحب اساں سے گڈ جو سینئر صاحب کے نظر تجربار میں جو سامی صاحب السلام علیکم. سامی صاحب کیے تھا ॾिसो بلوچستان جو معاملو 26 اگست کا پو وری ملک جو ایکڑو اہم ایشو تھی سامنے آयो आहे. ان حوالے सां کل ایپیکس کمیٹی جو اجلاس بھی تھو اج کابینہ جو اجلاس بھی تھو وزیر اعظم صاحب بالکل واضح لفظن میں چوا تو ان معاملے تے کنहिं کي بھی بخشو نہ ويندو چھڪان جو آئين
पाकिस्तान जे आहिनि, पाकिस्तान जे झंडे या पाकिस्तान जे वजूद खां इनकारी आहे, असां का बि ॻाल्हि ॿोल न थींदी, उनखे दहशतगर्द तौरु ट्रीट कयो वेंदो। ॾिसो, हिन में ॿ शयूं ॾाढियूं अहम आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त जेको तालिबान जी दहशतगर्दी आहे या जेको KPK में थियनि पियो दहशतगर्दी जा वाक़िया, उहे बलूचिस्तान में जेके वाक़िया थियनि था, इहे ॿई हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहिनि। ॿिए नंबर ते जेका ॻाल्हि आहे जी तव्हां बि इंट्रो में ॿुधायो पिए त कहिड़े नमूने सां बलूचिस्तान जे अंदरि जेको इशू आहे उहो 50 सां वठी 60 वारे ॾहाके में छा शकिल थी, 70 वारे ॾहाके में छा बि थी, उहो सॼो पंहिंजे साम्हूं आहे। त असल में हुते ख़ुदि बलूचिस्तान जे अंदरि बि मतिलबु त आइन ते अमल करण जो इशू आहे, कानून ते अमल करण जो इशू आहे, आइन जेको 73 जो आइन हो ऐं उनखां अलावा जेको पोइ 18 तरमीम थी उन जो इशू आहे। उहे सभु ॾाढा जेके आहिनि अहम इशू आहिनि। बलूचिस्तान में इहा जेका सूरत हाल पाण ॾिठी त जहिड़े नमूने सां पहिरें टेन्यूर में सदर आसिफ अली ज़रदारी जेको बलूचिस्तान जे लाइ पैकेज ॾिनो ऐं उन लाइ चई त आउं माफ़ी वठां थो, उहो थियो। उनखां पोइ जेको आहे उते जेका हुकूमत क़ाइमु थी, जेका मियां नवाज़ शरीफ़ जे हुन में हुई, तॾहिं जो डॉक्टर मालिक जी हुकूमत हुई, पर थियो ई त उन खे बि हलणु न ॾिनो वियो। त उते असल में हिकिड़े पॉलिटिकल प्रोसेस जी ज़रूरत आहे ऐं जेके माण्हुनि जा हक़ आहिनि, जेको विचूं तबिको उभरी आयो आहे, उन खे अकोमोडेट करण जी ज़रूरत आहे। इहो हिकिड़ो पॉलिटिकल प्रोसेस जे ज़रिए थी सघे थो ऐं इहे जेके तरीक़ा आहिनि इहे त मुंहिंजे ख़्याल में अञा बि आज़माए थियनि पिया, अॻिते शायदि आज़माए थियनि त ॾाढी ख़राबु ॻाल्हि आहे। ऐं पाण फिक्की सां इहो कंदा पिया अचूं त उन जो को पाण नतीजो ख़ातिर खां जेको आहे उहो न हासिल करे सघे, को लाभ न हासिल करे सघे। अच्छा साईं, ज़ियाउर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं पंहिंजो पाकिस्तान जे अंदरि ऐं रीजन जे अंदरि जेका टेररिज्म थिए थी पई उनखे कवर कंदा रहनि था, उन्हीं असांखे ज्वाइन किया। ज़ियाउर रहमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि 26 अगस्त के जो वाकयात हुए हैं उसको देखते हुए जो पाकिस्तान के उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, आपका इन सारे मामलों पे क्या अपना टेक क्या है आपका? व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दिस? जी मेहरबानी फैज साहब, मेरे ख्याल में ये जो हालिया वाकयात थे BLA के, उन्होंने एक ही वक्त पे एक ही दिन में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जिलों में हमले करके और मेन शहराओं को पैरालाइज करके कब्जा करके एक ये मैसेज दिया है कि ये जो बलूचिस्तान का मसला है ये बहुत एक तो गंभीर हो रहा है, सही है, और ये पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस्लामाबाद में बैठे हुए जो लोग हैं उनके लिए एक तरफ वो TTP और दाइश का मसला में फंसे हुए हैं, फाटा है CP में, एक तरफ बलूचिस्तान का मसला भी गंभीर हो रहा है, माशी मसाइल भी है, सियासी मसाइल का भी शिकार है अब इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद। तो ऐसी सूरत हाल में इन पर बड़ा प्रेशर पड़ा है, चीन का बड़ा दबाव आ रहा है, और जो नई बात हो रही है ऑपरेशन की, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, उसकी बार बार बातें हो रही है। हमने ये भी सुना कि उसके लिए पैसे कर दिए उन्होंने शहबाज शरीफ ने। लेकिन क्या ऐसे माहौल में जब मुल्क में माशी मसाइल हो, जब सियासी तौर पर कंसेंसस ना हो, ऐसे में क्या ये मुल्क एक नया ऑपरेशन करने का मोतमिल हो सकता है? 2014 में ऑपरेशन घर अजब जो था वो डिफरेंट था, KP या फाटा के इलाकों में। उस वक्त नया APS हुआ था, पेशावर में स्कूल में बच्चे शहीद हुए थे, जिसके बाद नवाज शरीफ की उस वक्त की हुकूमत को तमाम सियासी जमातों की और सिविल सोसाइटी की और तमाम उसकी हिमायत थी, और उस वक्त माशी मसाइल भी बहुत कम थे। अमेरिका भी हमारे साथ था, उनके ड्रोन्स और इंटेलिजेंस की बड़ी सपोर्ट की, और उसके साथ साथ जो नेबरिंग कंट्री थी अफगानिस्तान, वहाँ पर जो हुकूमत थी अशरफ गनी की, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया, काफी TTP के लोग पकड़े थे। मगर आज की सूरत बिल्कुल डिफरेंट है। आज खजाना खाली है, मुल्क के अंदर बिल्कुल पॉलिटिकल कंसेंसस है नहीं, कोई बैठने को तैयार नहीं है। KP की बात करें तो 4 जो बड़ी जमातें हैं, PTI, JYF और ANP और जमात इस्लामी, इन्होंने मुखालफत की है ऑपरेशन की, सही है। बलूचिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि अख्तर मेंगल ने कल जो मीटिंग हुई उसमें शिरकत नहीं की, और जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है, जैसे जो पुराने जो कुछ हफ्ते पहले तक जो ब्रिज का रोल प्ले करते थे, अब्दुल मालिक बलोच की नेशनल पार्टी, अख्तर मेंगल की BNP, जिस तरह उनको बीच से सिस्टम से हटाया गया है, तो वो ब्रिज था, वो ब्रिज बेसिकली टूट गया है।
पहाड़ों वालों के दरमियान और इस्लामाबाद के दरमियान। एक तो, और ये इसकी बहुत बड़ी वजह है कि नौजवानों को फिर ऐसे हालात को ग्रुपों ने बड़ा इस्तेमाल किया और काफी नौजवान मेरे ख्याल में शामिल हुए हैं अस्कर की तरफ। तो बड़ा गंभीर मसला है, इतना सिंपल नहीं है कि आप ऑपरेशन करके कामयाब हो जाएंगे। जब तक कि पॉलिटिकल मसला है, आपको पॉलिटिकल लोगों को एतमाद पे लेना होगा, आपको बलूचिस्तान के नौजवानों को पार्लिमानी निज़ाम पे, उस सिस्टम पे यकीन दिलाने के लिए कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। आपको जो कुंबर जमातें थी, खासतौर ये दो जमातें जो है जो बलोच बेल्ट में बड़ी अपना एक पुराना असर रसूख रखती है, नेशनल पार्टी और BNP, उनको एंगेज करना पड़ेगा। अभी भी मुश्किल है, लेकिन आप शुरू तो करेंगे किसी न किसी काम से। अच्छा सामी साहब, तव्हां कीअं था ॾिसो, छाकाणि त बलोचिस्तान में हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आहे ऐं हिन वाक़े खां पोइ उते जेको आहे वज़ीर आला जेको आहे उन जी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सां बि मुलाक़ात थी आहे। तौर जो हीअ अपेक्स कमेटियूं, वज़ीर आज़म, इहो जेको ऑफिशियल चैनल आहे उहो त हलियो आहे, पर साॻे वक़्तु पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन जी हैसियत में, पाकिस्तान जे सदर जी हैसियत में आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आला साहब ऐं उनजी मुलाक़ात बि थी आहे। तव्हांजे ख्याल में पीपुल्स पार्टी, आसिफ अली ज़रदारी साहब जेको मफ़ाद जो बादशाह सम्झो वञे थो, जीअं 2008 जो बि पाण रेफरेंस ॾींदा रहंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम में, मूं अॼु बि ॾिनो, त उन वक़्तु जेका ज़रदारी साहब जी अप्रोच हुई, छा था सम्झो त ज़रदारी साहब जी उहा अप्रोच हाणे हिन वक़्तु उहा कीअं हलंदी हिते? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि आहे त 2008 में जेका ज़रदारी साहब अप्रोच रखी, जेको बि कमु कयो, जेके ऐलान थिया, उन खे हलण न ॾिनो वियो, उन ते ठीक तरह सां अमल न थी सघियो। ऐं हिन भेरे जॾहिं पीपुल्स ज़रदारी साहब सदर थियो आहे ऐं बलोचिस्तान में जेको आहे पीपुल्स पार्टी जे खाते में हुकूमत ॾिनी वई आहे, त माण्हुनि जो इहो ई तवक़ो पए थी त हाणे जेको इहो सिचुएशन ई बीहंदी त हुते हिकिड़ो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू थींदो ऐं ही ख़ासि तरह सां जेको उभरंदड़ तबिको आहे, नौजवान आहे, इन खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां जेको पार्लिमानी सियासत आहे, पार्लियामेंट आहे, मुल्क जो आइन आहे, कानून आहे, इन तरफ़ खे वठी वञण जी का वाट निकिरंदी। मतिलबु इहो हिकिड़ो जनरल जेको सियासी मुबसरनि या जेके सियासी सम्झ माण्हू रखनि था, उन्हनि जो इहो ख़्यालु हो त इहो मामिलो इन तरफ़ वेंदो, इहो थींदो, पर इहो जो अञा ताईं इहो थियो न आहे। त असल में इहो पॉलिटिकल प्रोसेस जेको आहे उहो शुरू थियणु खपे आहे। माण्हुनि खे तवक़ो जेका आहे उहा ज़रदारी साहब ऐं पीपुल्स पार्टी जे हुजण जे करे इहा आहे सही। हाणे उहो कीअं थी शकिल वठे, छा थी थिए, उन में ज़ाहिर त इलाही सारियूं रुकावटूं आहिनि, तकड़ में एॾो वॾो को कमु न पियो करे सघिजे शायदि, कीअं, इन्हनि सभिनी शयुनि खे ॾिसणो पवंदो। पर इन रुकावटुनि जे बावजूदि मतिलबु जेको मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहो इहो आहे त इहो बाक़ाइदे जीअं ज़िया बि चयो पिए त हिनखे माण्हुनि खे इहो यकीन ॾियारियो वेंदो त भई हिते आइन ते ऐं कानून ते अमल थींदो ऐं तव्हांखे हक़ मिलंदा। जेकॾहिं उहो थींदो त पोइ को घस निकिरी सघे थो। न, पर उहो थींदे नज़र त कोन पियो अचे। पंहिंजो सामी साहब, तव्हांजो बि एॾो वॾो तजुर्बो आहे जेको हिन वक़्तु ऐं जेको रवियो आहे, जेके स्टेटमेंट आई आहे असांजे वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी साहब जी या जेका प्राइम मिनिस्टर साहब जेका ॻाल्हि कई आहे, मतलब 26 तारीख़ जे वाक़े जी मज़म्मत ज़ाहिरा तव्हां असां समेत पाकिस्तान जो हर माण्हू जेको आहे उहो 26 तारीख़ जे वाक़े जी मज़म्मत करे थो। इन मारन बलोच साहिबा बि उनजी मज़म्मत करे छॾी, पर ॻाल्हि इहा त उनखां पोइ बि जेके मसफ़ शुदा लाशूं मिलियूं आहिनि ऐं ख़ुदि जेको आहे इहो हेतिरा माण्हू जेके उते गुम थियल आहिनि, जंहिंजे लाइ हेॾा वॾा मार्च थिया, हेॾा वॾा प्रोटेस्ट थिया, इन्हनि माण्हुनि जी ॻाल्हि त हिन सॼे 26 वारे वाक़े में का थिए कोन पई। हर को टेररिज़म जी हो त करे पियो, पर ही जेको हिकु अधु सदी ताईं जेको बलोचिस्तान जे अंदरि जेको थियो आहे, जेको पंहिंजो जिना साहब वञी हुते जेके कमिटमेंट्स कयूं हुयूं, या उनखां पोइ जेका नवाब नौरोज़ खान सां जेके कमिटमेंट्स थियूं, या प्रिंस अब्दुल करीम सां जेका कायदे आज़म साहब जे जेका पंहिंजो कमिटमेंट्स थियूं, या उनखां पोइ जेको आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जीअं तव्हां चओ त ज़रदारी साहब जेके एफर्ट्स वरितियूं उनजे हवाले सां, या ख़ुदि जेको आहे नवाज़ शरीफ़ पंहिंजे वक़्त में जेको आहे डॉक्टर मालिक जी जॾहिं हुकूमत हुई, त कंहिं बि शइ ते ख़ुदि उहा जेको ॿी तरफ़ खां जेको आहे पूरी की तारीख़ आहे जंहिं ते अमल न पियो थिए, इन ते गुफ्तगू कंदासीं। रहमान साहब, आप भी हमारे साथ आइएगा। नाज़रीन का वक्त वापस प्रोग्राम करते हुए
वेलकम बैक राजी अशरफ प्रोग्राम जिस सिलसिले करते होता है गुफ्तगू अंदर आया दहशतगर्दी जे हवाले सां दहशतगर्दी मुल्क के अंदर जेका वधंदड़ लहर आहे ख़ासि तरह बलूचिस्तान जा जेके वाक़िया थिया आहिनि 26 अगस्त ते उन खां पोइ एपेक्स कमेटी जो इजलास कोयटा में थियो ऐं जेको वफ़ाक़ी काबीना उन ते ज़ेर गौर वीचार कयो आहे ऐं वज़ीर आज़म साहब तमामु सख़्तु पैगाम ॾिनो आहे ऐं वाज़े लफ़्ज़नि में चयो आहे त जेको पाकिस्तान जे आइन पाकिस्तान जे झंडे या पाकिस्तान जे वजूद जी इनकारी आहे उन सां कंहिं बि ॻाल्हि न थींदो उनखे दहशतगर्द तौरु ट्रीट कयो वेंदो ऐं उनखे सख़्ती सां उनखे कुचलियो वेंदो। उन सां गॾोगॾु पंहिंजो मोहसिन नक़वी साहब जे बक़ौल त को ऑपरेशन बलूचिस्तान में कोन पियो थिए ऑपरेशन जी ज़रूरत बि कोन्हे छाकाणि त बलूचिस्तान जी जेका मामिलो आहे उहो हिकिड़ी एसिड जी मार आहे वॾी ॻाल्हि आहे ऐं उन ते हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। ज़ियाउर रहमान साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं पंहिंजो दहशतगर्दी मुल्क जे अंदरि थोरे रीजन जे अंदरि जेका थिए थी उहा बीट कवर कंदा रहनि था उनखे तमामु माइन्यूटली जेको आहे वेझे खां ॾिसंदा रहनि था। उन सां गॾोगॾु जेको आहे पंहिंजो साईं सुहेल सांगी साहब उनके सीनियर सहाफ़ी असांजो प्रोग्राम जो मुस्तकिल पॉलिटिकल एनालिस्ट जेके कोई भी असां सां गॾु अचो त गुफ्तगू करते था। ज़ौहर रहमान साहब आपकी तरफ आते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो जिस तरह की अब स्टेटमेंट्स आई हैं सामने क्योंकि मैं सुन रहा था ये जो वाकया हुआ है 26 के बाद और जिस तरह की ये गुफ्तगू हुई है फिर एपेक्स कमेटी हुई है फिर वफाकी काबीना का इजलास हुआ है लेकिन मैं सुन रहा था काफी लोग कह रहे थे कि भाई और तो छोड़ो पाकिस्तान का आइन जो है रियासत जो है वो बलूचिस्तान में कितना आइन पे अमल करती है यहाँ तक कि मुर्तजा साहब जो अपना सेनेटर हैं उसने तो यहाँ तक कहा कि भाई बाकी आइन को छोड़ें आइन का आर्टिकल 4 जो है आप सिर्फ उस पे अमल दरामद करवा दें तो शायद बलूचिस्तान का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और आइन का आर्टिकल 4 कहता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ यानी हर शहरी को साथ कानून के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन ये मिसिंग पर्सन के जो हम मामले सुन रहे हैं बुलेट रिडल जो है मसफशुदा लाशों के मामले जो है वो उठते हैं और फिर जिस तरह महारंगा और उसके साथ जो खवातीन निकली बलूचिस्तान की उन लोगों ने जो अपने दुखड़े सुनाए उससे पहले मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब निकले थे मिसिंग पर्सन का केस लेके उसके साथ फैमिलीज थी उसने जो कहानियां सुनाई तो वो तो अब ये मामला है कि हम लोगों से और हम कह रहे हैं कि वो जो लोग लड़ रहे हैं जो दहशतगर्द उनको कह रहे हैं कि वो कानून के मुताबिक अमल करें तो रियासत भी तो कानून के मुताबिक अमल करे आइन के मुताबिक अमल करे। जी फैज साहब एक तो हम देखते हैं कि जो बयानात आए ना जैसे आपने खुद हवाला दिया है मोहसिन नकवी के बयान का कि SHO की दे रहे ना मेरे ख्याल में जो संजीदा कोशिश हुई थी वो हुई थी 2008 में जब पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत थी लेकिन उससे ज्यादा संजीदा कोशिश हुई थी जब दहशत पार्टी की हुकूमत बनी और मालिक बलूच साहब ने जो बाहर उस वक्त बैठे हुए थे नाराज लीडरशिप खान मुश्किलात मिसाल ले लें और लीडर बैठे हुए थे उनसे बातचीत भी की और उनकी वापसी के लिए रास्ता भी हमवार करते रहे। बलूचिस्तान असेंबली से एक बाकायदा करारदाद पास हुई कि जो लोग वापस आना चाहे एग्जाइल से उनको वेलकम करेंगे लेकिन हम देखते हैं कि उस अमल की इस्लामाबाद में कोई पजीराई नहीं हुई और वो अमल अधूरा रह गया। आप अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के अंदर जो बड़ा एक डिक्लाइन आया था वो आया था 2014-15 से लेकर 13 से लेकर 15-16 तक। ये वो टाइम था कि जब मुख्तलिफ स्कीमें शुरू हुई जिसके अंदर एक वो स्कीम थी कि जो बंदा सरेंडर करे तो उसको मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ था लेकिन वो प्राय तकमील तक ना पहुंचेगा जिसकी मेन वजह जो लोग ठहराते हैं वो इस्लामाबाद की अदम संजीदगी को ठहराते हैं। अब मसला ये कि अब उस वक्त बातचीत का ऑप्शन था क्योंकि जो बाहर बैठे हुए थे लीडरशिप उनके हाथ में थी जो कबायली सरदार थे। अब लीडरशिप आ गई है कबायली सरदारों से नौजवानों के हाथ में जो बहुत हार्ड लाइनर है जो बिल्कुल रेडी नहीं है बातचीत करने के लिए और यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते वो हम भी बातचीत नहीं करना चाहते। तो ऐसे सूरत में जब कोई फरीक बातचीत नहीं कर रहा तो ये बात आगे कैसे बनेगी। और हम देख रहे हैं कि ये मिलिटेंट ग्रुप जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों में। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद TTP मजबूत हुई है उसी तरह जो बलोच ग्रुप थे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हुए। आप उनके हमले देखें आप इनकी असला देखें आप इनकी कार्रवाइयाँ देखें सही है। और दूसरी जो हम देखते हैं कि स्टेट का या
कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हालांकि 2004 से ऑपरेशन शुरू हुए, 5-6 से 20 साल होने वाले हैं, लेकिन नाम देखते हैं कि जो बार बार कहते हैं कब्र तोड़ दी या कुछ कर दी, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि सारी सिक्योरिटी ऑपरेशन भी फेल हुए हैं। और सबको पता था 26 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 26 अगस्त तो नवाब भुट्टी की बरसी हो या गुलाम मोहम्मद बलोच की हो या बाला मरी की, उस वक्त उस दिन ये मिलिटेंट तंजीमें हमले करती है। सबको पता था कि 26 अगस्त बड़ा एक दिन है जिस दिन ये वाक़यात होंगे, लेकिन उस वक्त क्या कहाँ थी? ये तो बेसिकली स्टेट का फेलियर था कि एक दिन पूरा सूबा, पूरा स्टेट या रमालती पैरालाइज थी। तो ये बजाय अपनी गलती को मानने के, दाखिला का जो बयान था कि एक एसओ की मार है, तो मेरे ख्याल में ये अपनी गलती को छुपा रहे हैं। जी अच्छा सानी साहब, ही जेको आहे नकवी साहब जेको आहे चवण इहो बि चयो बयान में त ही सॼो जेको आहे शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इजलास थिए पियो पाकिस्तान, जंहिंजी मेज़बानी करे पियो, जंहिंमें पंहिंजो हिंदुस्तान वज़ीर आज़म खे दावत ॾिनी वई, जंहिं शायदि इनकार कयो आहे। चयो पियो वञे त ही बकौल नकवी साहब जे त ही उन्ही खे नाकाम करण जी कोशिश आहे। तव्हां कीअं था ॾिसो हिन सॼे मामले खे? ॾिसो, हिन में जेका असुल शइ आहे उहो इहो आहे त जेको हींअर छाकाणि जो मुल्क में हिकिड़े क़ाइम तरीक़े सां चइजे चूंडियल हुकूमत आहे, सिविल हुकूमत आहे, पॉलिटिकल हुकूमत आहे, उनखे पॉलिटिकल बयान ऐं पॉलिटिकल बिहेवियर रखणु खपे। हिन वक़्तु जेके विच में जेके जूरियूं थियनि थियूं, स्टेक होल्डर थियनि था, जेके चइजे उहे त 3-4 आहिनि। भई हिकिड़ा त चलो गवर्नमेंट आहे, एस्टेब्लिशमेंट आहे, सॼो ई हले थो, ठीकु आहे। ॿियो जेको मामलो आहे उहो इहो आहे त जेके विच में पुराणा जेके क़ौम पर्स हुया, जीअं ज़िया साहब बि चयो पिए त डॉक्टर मालिक आहे, अख्तर मेंगल आहे, इहे जेके पुराणा क़ौम पर्स हुया उहे आहे। अच्छा, ॿिया जेके आहिनि जेके पहाड़नि ते विढ़नि पिया, उनखे तव्हां जेको बि नालो ॾियो, उहे आहिनि। अच्छा, विच में हिकिड़ी टी अञा चौथी फोर्स जेका निकिती आहे, उहा इन मारन बलोच जे रंग में इन में जेको आहे अॻिते आई आहे, जंहिंमें नौजवान गंढियल आहे। ऐं जेको चवे थो त भई जेके इहो सॼो प्रोसेस जेको आहे सो ठीक थिए ऐं ॻाल्हियूं मञियूं वञनि, ठीकु आहे। उन्हनि जेको मेन जेको इशू आहे उहो चवनि था त डिसअपियरेंस थियो आहे। त ऐं उनखां पोइ इहा ॻाल्हि मतिलबु इहा ॾाढी इम्पोर्टेंट ॻाल्हि आहे त भई गवर्नमेंट जेको कोयटा में बि जेको इन्हनि जो थियो मुज़ाहिरो थियो, उते कोयटा जे कमिश्नर जेको आहे सो उन ॿारनि सां एग्रीमेंट कयो, साइन कयो त भई ठीकु आहे, असीं माण्हू छॾियूं था, ही कयूं था, माना तव्हां ॻाल्हियूं कयूं। साॻी तरह सां जॾहिं गवादर में थियो, उते बि गवादर जे डिप्टी कमिश्नर ज़ाहिर आहे त उहो गवर्नमेंट सां ई राब्तो थियो हूंदो, सॼो थियो हूंदो। मतिलबु इहो थियो त भई ॻाल्हियूं करण लाइ त हे तयारु आहिनि, तव्हां विच में को रस्तो कढो न। त असुल शइ उहा आहे न त भई ही जेका नई फोर्स उभरी आहे, जंहिंजे करे इन सॼे खे हिकिड़ी जेका माण्हुनि में मक़बूलियत मिले थी या पज़ीराई मिले थी, उन शइ खे तव्हां कंहिं तरीक़े सां एड्रेस कयो न। ही त उन्हनि हिकिड़ो मौक़ो निकिरी आहे जंहिं मां हिकिड़ी शइ मसइले खे हल बि वठी वञी सघे थी। बाक़ी बिल्कुलु इहो ॻाल्हि सही आहे त जेके बि मुल्क जे अंदरि जेका सूरत हाल आहे, उन में जिते बि का डिस्टेबलाइज़ेशन थिए थी, उन जो नफ़ो नुक़सान जेको हुकूमत आहे उनखे पवे थो। उन में ज़ाहिर त जेकॾहिं तव्हांजे घर जे अंदरि भेड़ो आहे त उन जो को बि फ़ाइदो वठी सघे थो। नापर सिंह, ॻाल्हियूं त जेको तव्हांजी चयो न, ॻाल्हियूं त पंहिंजो मुशरफ जे ॾींहंनि में बि नवाब अकबर बुख्ती साहब सां मुशाहिद हुसैन ऐं वसीम सजादरनि कयूं हुयूं, शुजात कयूं हुयूं, ऐं उनमें बकौल उनजे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बि ॾींदे उहा ॻाल्हि चवंदो रहे थो त उते इतफ़ाक़ थी वियो हुयो। पर उहा जॾहिं वञे थी पई पंहिंजो मुशरफ वटि वई ॻाल्हि, त उहा क़बूल न पई। ईअं जेको आहे कमिश्नर साहब या जेको आहे पंहिंजो, या जीअं सवेर तव्हां ॻाल्हि कई त जेका ज़रदारी साहब जेके इनिशिएटिव वरिता बकौल तव्हांजे, त उहा ॻाल्हि हलण न ॾिनी वई। या जीअं पंहिंजो ज़िया चयो त पंहिंजो ज़िया रहमान साहब असांखे ॿुधायो त जेको डॉक्टर मालिक जेके इनिशिएटिव वरिता पंहिंजे वॾी वज़ारत जे दौरान, उहे शयूं उन्हनि खे अॻिते वधण में इस्लामाबाद में उनखे जेको पज़ीराई न मिली। मसइलो इहो आहे त हिन सॼे मामले में जेको वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेका असांजो इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव आहे हिन बलोचिस्तान जी, जॾहिं अॼु पाण ॻाल्हि कयूं था पिया, उनमें 4-5 जॾहिं पाण सॼी तारीख़ में जेकॾहिं हुनजो जाइज़ो वठूं था पिया, त उनमें 5-4-5-6 फैक्टर जेके आहिनि उहे डेवलप छा आहिनि। हिकिड़ो फैक्टर त सी पैक जो डेवलप थियो आहे, त चीन जेको आहे अची बलोचिस्तान में वेठो आहे, जेको असांखे
70 में 60 जे अंदरि या 80 जे अंदरि 90 जे अंदरि असांखे उहो चीन हिते नज़र कोन पिया आयो तेसि ताईं बलोच इंसर्जेंसी में चाइना वारो फैक्टर जेको आहे उहो कोन हुयो। उन सां गॾोगॾु बलोचिस्तान जी जेका इंसर्जेंसी आहे उनमें जेको आहे पंहिंजो फिदाइन जो जेको हमलो आहे या जेको आहे पंहिंजो सुसाइडल जेको आहे उहो ट्रेंड न हूंदो हुयो। हाणे उहो जेको आहे उहो वधियो आहे। उहो ॾिसूं था असां हिन भेरे बि जेका हिकिड़ी में बि नौजवान छोकिरियूं जेके आहिनि पढ़ियल लिखियल PhD जूं स्कॉलर या लॉ जूं टीचर पंहिंजो स्टूडेंट्स जेके आहिनि चौथे ईयर जूं इन तरह जूं पढ़ियल लिखियल छोकिरियूं जेके आहिनि उहे अचनि थियूं। ॿियो फैक्टर इहो थियो आहे। टियों फैक्टर जेको महरम जी सूरत में जेको हेॾी सारो औरतुनि जो तादाद निकिरे थो बलोचिस्तान जे अंदरि इस्लामाबाद ताईं पहुतो पर कोयटा जे अंदरि ग्वादर जे अंदरि ऐं ॿियनि जॻहियुनि ते जेको असांखे नज़र आयो उहो जेको आहे फैक्टर उहो जुदा उहो थियो आहे। ईअं पंहिंजो जेको आहे जीअं ॿुधायो पिया ज़िया रहमान साहब ॿुधायो पिया त ही मिलिटेंसी जे अंदरि बजाए जो हिननि ऑपरेशन जे जवाब में उहा कमज़ोर थिए उनजी सघ वधंदी पई वञे ऐं जेको 26 अगस्त वारा वाक़िया ॿुधाइनि था पिया त ऐं उनखां पहिरियों बि असां केतिरा वाक़िया असांखे नज़र आया आहिनि ऐं उन ते गुफ़्तगू कयूं था पर हिकिड़ो वक़फ़ो वठूं था। इहे जेके नवां फैक्टर इंडक्ट थिया आहिनि हिन सॼे प्रोसेस जे अंदरि रियासत खे पंहिंजो जेका पॉलिसी आहे उहा हाणे उनखे उहा कीअं थियणु घुरिजे। हाज़िर वठूं था वक़फ़ो वापसि जी प्रोग्राम रखते था। प्रोग्राम सिलसिले खे अॻिते वधाइण गुफ़्तगू हलंदड़ आहे बलोचिस्तान जे मामले ते ऐं जेके मुख़्तलिफ़ जेके नवां फैक्टर बलोचिस्तान जे मामले ते थिया आहिनि CPEC हुजे चाइना जो मामलो हुजे उनखां पोइ बलोच मिलिटेंसी जे अंदरि जेको सुसाइड यानी ख़ुदकश बमबार जो जेको आहे फैक्टर ऐं उनमें बि नौजवान छोकिरियूं पढ़ियल लिखियल ऐं उनखां पोइ जेको डॉक्टर महरम जी सूरत में जेको औरतुनि जा जेके जथा ऐं उन जा जलसा ऐं वॾो एहतजाज जेको पुरअमन जेको उहो सिलसिलो शुरू थियो आहे जंहिंखे तमामु घणी पज़ीराई मिली आहे। उनखां अलावा जेको आहे बलोचिस्तान जे अंदरि जेका ज़िया रहमान साहब ॻाल्हि कई पए त अॻे पंहिंजो क़ौम परस्ती जेका हूंदी हुई उहा सरदारनि जे हवाले हूंदी हुई। उहा मरी सरदार हुजनि या मंगल सरदार हुजनि या इन तरह जो जेको फैक्टर हूंदो आहे उन्हनि जे हथनि मां निकिरी हाणे जेको आहे उहा बिल्कुलु हिकिड़े मिडिल क्लास जे पढ़ियल लिखियल शागिर्दनि जे हथ में अची वई आहे ऐं उहे जेके आहिनि उहो थी विया आहिनि। इहे सभु फैक्टर जेके आहिनि हिन सॼे मामले खे जेको उन जो जेको मामलो आहे जेको सॼी जेका उन मिलिटेंसी जो जेका शक्ल आहे उहा बि तब्दील थी वई आहे ऐं सॼो जेको एटमॉस्फेयर आहे जेको एनवायरमेंट आहे ऐं जेको माहौल आहे ऐं जेको मंज़र आहे उहो बिल्कुलु तब्दील थी वियो आहे। उन बदिलियल मंज़र में असां उहा साॻी रियासती पॉलिसी ते उन सॼे मामले खे कीअं था ॾिसी सघूं। ॿियो ख़ुदि जेको आहे इंटरनेशनल प्लेयर्स में जेको अमेरिका जेको सदाईं पाकिस्तान जो इत्तेहादी सम्झियो वेंदो हुयो पर चाइना जे अचण खां पोइ अमेरिका जो रवैयो बि जेको आहे हिन सॼे ख़िते जे बारे में ऐं ख़ासि तरह चाइना जी प्रेज़ेंस जे हवाले सां वो डिफरेंट आहे। ये फैक्टर इन सॼे मामले के किथे खड़ी वञी सघनि था पिया। ज़िया रहमान साहब आपकी तरफ आता हूं कि ये जो फैक्टर्स आए हैं कि सीपेक आया है, चाइना आया है, चाइना की वजह से अमेरिका का रवैया, फिर मिलिटेंसी के अंदर ये जो सुसाइडल अपना वो जो अब टेंडेंसी आई है उसमें भी पढ़ी लिखी लड़कियां जो है वो हिस्सा ले रही हैं। फिर महरम बलोच की शक्ल में जो एक खवातीन की पीसफुल मूवमेंट शुरू हुई है और फिर जिस तरह आपने कहा कि वो जो फ्यूडल्स के पास थी ट्राइबल लॉर्ड अपना चीफ के पास जो अपना थी कौम परस्त सियासत वो निकल के अब मिलिटेंसी जो है वो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के पास चली गई है। ये सारे फैक्टर की वजह से जो मंजरनामा और ये जो शक्ल हैयत जो तब्दील हुई है इसकी, उसमें पॉलिसी हम आज तक वही लाठी की चला रहे हैं, तो वो किस तरह कामयाब हो सकती है? बिल्कुल, ये आपने जो फैक्टर बयान किए ये सारे वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो रिसर्जेंस को बता रहे हैं इस इंसर्जेंसी की जो रीबर्थ हुई है 3-4 साल पहले। और हमारी स्टेट अभी तक उन्हीं पुरानी मतलब दखीनुसी बातों पे लगी हुई है। सही है, आपने जो बड़ी अहम बात की कि पहले सुसाइड बॉम्बिंग करते थे जो मजहबी इंतहा पसंद थे जैसे टीटीपी या अलकायदा वो करते थे, अब इन्होंने भी वो अडॉप्ट कर लिया है। और हम देख रहे हैं कि नौजवानों का तो नंबर ज्यादा था लेकिन खवातीन का भी जो पार्टिसिपेशन है वो अब ग्रेजुअली बढ़ रही है। अब तक 3 खवातीन इस्तेमाल की है BLA ने
उसके अंदर शहरी बलोच और ये जो अभी 26 अगस्त को जिन्होंने अपने आप को उड़ाया है माहल बलोच, ये इन दोनों का कोई फैमिली पर्सन ना मिसिंग था, ना कोई इनका कोई रिश्तेदार मारा गया। ये मिडिल क्लास से लोग थे, सही है, एजुकेटेड लोग थे, एक लाख की स्टूडेंट थी, एक उस्ताद थी। तो ऐसे दौर में जब आपका ना कोई मिसिंग हो और ना कोई आपका मारा गया हो और सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से अगर लोग ज्वाइन कर रहे हो बीएलए और अपने आप को मारने के लिए तैयार भी हो, तो ये बहुत बड़ी खतरनाक इंडिकेशन है। और ये स्टेट को चाहिए कि मामला की सीवियरिटी को समझे, सही है। दूसरी बात जो आपने की कि पहले काम इसलिए आसान था कि सरदार बैठे हुए थे बाहर, उनके कजन भाई यहाँ पर एमपी एमएनए बन जाते थे और सरदार खुद बाहर बैठे हुए थे, तो उनमें कोई लचक निकलती थी बातचीत करने की। अब जो लीडरशिप आई है, जो साबिक तलबा लीडर थे, ना उनका कोई स्टेक है पार्लियामान में और वो तो कहते भी है कि हम बातचीत के तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर 10 साल पहले भी स्टेट चाहती तो मतलब काफी हद तक हल चुका होता। अगर 5-6 ग्रुपों के अंदर 2-3 ग्रुप भी वापस आ जाते तो इंसर्जेंसी आज इस फॉर्म में नहीं होती। आज तो मामला ये कि हालात बड़े खराब हो गए और हमें पता नहीं कि शुरू कहाँ से करें, मतलब अगर बातचीत करे ना करे, ऑपरेशन करे ना करे। अच्छा, पहले ये था कि पहले तो इनकी जो इंसर्जेंसी थी वो काफी लिमिट थी, बुगटी एरियाज में या मरीड एरियाज में या कोलू या बोलान के इलाके में। अब वो इंसर्जेंसी इतनी फैल रही है कि मूसा खेल जो पंजाब का बॉर्डर है, पश्तून इलाका है, वहां तक पहुंच गए। लसबेला जो कराची से अटैच है वहां तक पहुंच गए। तो एक तो उनकी अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपेंड हो रहा है, सही है। और जो दूसरी बात भी थी कि जो मेन चीज थी वो थी पार्लिमानी पॉलिटिक्स, इलेक्शन की सियासत। जिस तरह इन 2018 से हम देख रहे हैं कि कुछ मखसूस वही लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में जीत के आ रहे होते हैं, सही है। 2018 में वो बाप पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में है। और जैसे वो इलेक्शन में आए, आप जब बात करें मकरान के लोगों से या कोयटा के लोगों से, तो आपको मालूम हो जाएगा इससे जो रही कसी लोगों का ट्रस्ट था इलेक्शन के निजाम पे, सिस्टम पे, इंतखाबात पे, वो भी खत्म हो गया। तो मेरा बड़ी मेहरबानी ज़ाहिर रहमान साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि इलेक्टोरल सिस्टम जो निज़ाम है उस पे भी लोगों का जो है वो अपना एतमाद खत्म होता जा रहा है। सांगी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच, असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट साईं सोहेल सांगी साहब आया जो कि प्रोग्राम जे पंहिंजो मेहमान जनाब ज़ियाउर रहमान साहब खे इजाज़त ॾींदासीं।